A very good morning, everyone. So, in the last class, we saw one topic which was types of statements in Python. So, in this topic, we saw how many types of statements are there in Python, and out of those, the third category, that was compound statement, is something that we are going to study in this particular chapter. So the first one was empty statement, that means nothing, just pass, which is a keyword. Next is simple statement. Simple statement means a single statement, single line of codes that we write are called simple statements. And similarly, compound statement means so some codes which are of more than one line, so that will be called as compound statement. One thing important about the compound statement was that it consists of a colon, है ना? It consists of a colon sign, and whenever a colon sign comes in a Python program, it is called as a block. So this is something that you should know, means it creates blocks when we talk about compound statements. All right, so this was it. We will get further into it, and we will be getting things very clear once we get on to those topics. Okay, so the topic for today is statement flow control. Now, what we are going to do in this topic is we will be looking at the source codes, and this is a source code. For example, this is a source code, and in this source code, as you can see, most of the time what happens, first line of code, second line of code, third line of code, fourth, fifth and sixth, this is the way in which a particular set of instruction is executed, है ना? ये एक वे होता है. This is one way of getting statements executed. Now, so if it is executing the statements in this way, so it is what? It is a flow, है ना? It is a flow of statement. So this is the simple flow of statement from top to bottom, but there are many other flows of a statement that can occur. So that is something that we are going to deal with in this particular topic. Okay, so statement flow control, चलो read करते हैं. In a program, statements may be executed sequentially, selectively or iteratively. Every programming language provides constructs to support sequence, selection और iteration. यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि एक प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट्स इन तीन, सीक्वेंशियल, सिलेक्टिव या इटरेटिव, इन तीन में से कोई से एक फ्लो को फॉलो करता है. We are talking about Python, and we are talking about all the other programming languages that are there, है ना? जावा हो गई, MySQL हो गई, C++ हो गई, PHP हो गई, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट्स का फ्लो तीन तरीके से हो सकता है. पहला होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है सिलेक्टिव और तीसरा होता है इटरेटिव. ये तीन होते हैं, ठीक है. चलिए तो पहले वाले पार्ट को हम देखते हैं. सीक्वेंस क्या होता है? एज फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पर सीक्वेंस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था. पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इन द सेम ऑर्डर. तो ये जो अभी तक हमने देखे, अभी तक जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, उनमें जितने पाइथन के प्रोग्राम्स बनाए हैं, उन सारे प्रोग्राम्स में जो हमारा फ्लो ऑफ स्टेटमेंट था वो इस सिक्वेंशियल टाइप का फ्लो ऑफ स्टेटमेंट था, ठीक है. तो ये कुछ नया नहीं है, इसके बारे में बखूबी जानते हैं. इसको रीड करते हैं. द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मीन्स द स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली. दिस रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, है ना? जनरली जो डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट होता है वो यही होता है, सीक्वेंशियल. Every Python program begins with the first statement of program. Each statement in turn is executed. When the final statement of program is executed, the program is done. Sequence refers to the normal flow of control in a program and is the simplest one. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, फिर दूसरे, और अल्टीमेटली जो भी आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. जैसे ही लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आकर वो स्टॉप हो जाता है.
है ना। तो ये एक फ्लो होता है, ये सिंपलेस्ट सबसे आसान फ्लो ऑफ स्टेटमेंट यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन में कोडिंग करिए तो दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है प्रोग्राम्स को, कोड्स को एग्जीक्यूट करने का? तो जो दूसरा तरीका है वो है सिलेक्शन। ठीक है, वो है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या होता है, तो चलो इसको समझते हैं। द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। देखो यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स वही एग्जीक्यूट किए जाएंगे जो किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक कंडीशन होगी हमारे पास, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान यही है उसको समझने का तरीका, कि एक कंडीशन टेस्ट होगा हमारे पास, और इस कंडीशन टेस्ट के अंदर क्या होगा, कुछ कंडीशन दी हुई रहेगी हमें, इस कंडीशन का आंसर आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर आंसर ट्रू आएगा तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स आएगा तो कोई दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल में। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, a course of action or set of statements is followed, otherwise another course of action or different set of statements followed। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपकी ये कोई कंडीशन है और इस कंडीशन का आंसर अगर ट्रू आता है, और या अगर इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आता है, तो ट्रू आएगा तो कोई दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, और फॉल्स आएगा तो कोई दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब जब ये इस तरीके से फ्लो ऑफ स्टेटमेंट रहेगा तो ये सिक्वेंशियल तो है नहीं, ये क्या है, ये सिलेक्टिव है। अब ये किसको सिलेक्ट करेगा, तो ये उसको सिलेक्ट करेगा जो कंडीशन टेस्ट को फॉलो करेगा। जिस कंडीशन टेस्ट को फॉलो किया, ये उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। दिस कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इस तरीके का कंस्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, इसी तरीके के फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स का जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहा जा सकता है। क्यों डिसीजन कंस्ट्रक्ट इसको कहा जा सकता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट विच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज टू बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि ये यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है ना, ये डिसीजन लेना होता। अब ये डिसीजन किस पे बेस्ड होगा, तो ये डिसीजन बेस्ड होगा एक कंडीशन पे। कंडीशन का आंसर अगर ट्रू होगा तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स होगा तो कोई दूसरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो ये होता है सिलेक्टिव फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। इसको ग्राफिकली यहाँ पर अगर हम उसको थोड़े से एक डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि एक कंडीशन है, तो देखो कंडीशन और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आंसर उसका पूछा जा रहा है ना। अब आंसर क्या है, या तो आंसर फॉल्स आ सकता है या तो आंसर ट्रू आ सकता है। अब ये तो डिपेंड करेगा, अगर आंसर ट्रू आया तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आंसर फॉल्स आया तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। और अल्टीमेटली होना क्या है, तो अल्टीमेटली प्रोग्राम क्या हो जाएगा, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो रहे थे तो ये अल्टीमेटली यहाँ आकर एंड हो गया, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो रहे थे तो ये अल्टीमेटली यहाँ आकर एंड हो गया। तो ये आपको जो फ्लो चार्ट्स हैं, ये फ्लो चार्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऊपर वाले का फ्लो चार्ट देखो, बहुत सिंपल है क्योंकि वो सीक्वेंस था। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है ना। ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ये कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कब एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ये आपको ग्राफ जो है, ये फ्लो चार्ट जो है, सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू मे अप्लाई डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन इन योर रियल लाइफ सो मेनी टाइम्स। एग्जाम्पल, इफ द ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज रेड देन स्टॉप, इफ द ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज येलो देन वेट, एंड इफ द ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज ग्रीन देन गो। हम बहुत सारी जगहों पर डिसीजन मेकिंग
करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कुछ सिलेक्टिव होती है कि अगर ये आंसर आया तो हम ये करेंगे, ये आंसर आया तो हम ऐसा करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने उसको एक्सप्लेन कर कर बताया हुआ है। अब हो गई बात दो के बारे में। दो फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर, दो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स हमने देख लिए। पहला देख लिया सीक्वेंस, जो कि सबसे सिंपल होता है, एक के बाद एक। एक देख लिया सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या थी, तो कंडीशन थी। कंडीशन पे डिपेंड करता था कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे तीसरे फ्लो ऑफ स्टेटमेंट की तरफ, जो कि होता है इटरेशन। इटरेशन को लूप भी कहा जाता है। इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। टू रिपीट समथिंग इज कॉल्ड टू इटरेट समथिंग और टू लूप समथिंग, है ना। लूप मतलब क्या, ये एक लूप है, शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ नहीं पता, है ना। तो ये एक लूप है, रिपीट हो रहा है ये बार बार। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है, ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। ये सिलेक्शन से अलग है, बिल्कुल अलग है। सिलेक्शन में क्या होता था, कंडीशन होती थी और कंडीशन पे डिपेंड करता था कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपीट होगा। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखेंगे वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीट होंगे। अब कैसे रिपीट होंगे, चलो समझते हैं। द इटरेशन कंस्ट्रक्ट मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इटरेशन से नाम से पता था हमको कि भैया रिपीटेशन होता है, चलो ठीक है। अब कैसे होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। जैसा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में होता था वैसा ही यहाँ पर भी होता है। वी विल बी हैविंग वन कंडीशन, और वो कंडीशन डिसाइड करेगी कि स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं जिनको रिपीट करना है, और अगर रिपीट करना है तो कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ टू बी नोन। चलो आगे बढ़ते हैं। टिल द टाइम अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द लूप, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो देखो, अगर आपके पास कोई कंडीशन है, ठीक है, ये कोई कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन का आंसर जब तक ट्रू रहेगा, आपने बोल दिया ये 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है बार बार, तो जब तक ये कंडीशन का आंसर ट्रू आने वाला है तब तक ये लूप बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ये होता है लूपिंग। ठीक है, जब तक कोई कंडीशन का आंसर ट्रू आता रहेगा तब तक वो उस लूप में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको रिपीट करता जाएगा, और जब आंसर फॉल्स आ जाएगा तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और वो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। ये होता है इटरेशन। इसको डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू सॉरी, हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखो, एक कंडीशन है, कंडीशन का आंसर जब तक ट्रू है तब तक ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं देखो बार बार ऊपर जा रहे हैं। कुछ कंडीशन चेक हुई, ट्रू आया, 2 स्टेटमेंट्स रन हुए, दोनों स्टेटमेंट्स ने कंडीशन में कुछ चेंज कर दिया। फिर ऊपर जाके कंडीशन जो चेंज हुई है वो कंडीशन चेक हुई, क्या ट्रू आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर से ये 2 स्टेटमेंट चेक होंगे, ये 2 स्टेटमेंट फिर से कंडीशन में कुछ चेंज कर देंगे। अब फिर से वो जो नई कंडीशन आई वो कंडीशन टेस्ट होगी, क्या अब ट्रू आ रहा है, नहीं आ रहा, अब आंसर आया फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आएगा तो आपका जो भी ये प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा और अभी ये क्लोज हो जाएगा, इसके आगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दिस इज हाउ दिस फ्लो ऑफ स्टेटमेंट इन इटरेशन जनरली मूव्स। तो ये तीनों के जो ग्राफ्स हैं, तीनों के जो ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये तीनों फ्लो चार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लूप। जो स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं उसको लूप बॉडी या बॉडी ऑफ द लूप कहा जाता है, और जो कंडीशन पे डिपेंड करता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, टेस्ट कंडीशन या एग्जिट कंडीशन। दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है उसको, टेस्ट कंडीशन या एग्जिट कंडीशन। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया हुआ है, देखो। यू कैन फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इटरेशन और लूपिंग अराउंड यू। फॉर इंस्टेंस, यू ऑफन सी योर मदर कुक चपातीज और डोसाज और अपम्स फॉर यू। लेट्स सी व्हाट शी डज फॉर यू, है ना। घर पे मम्मियाँ जैसे कभी रोटियाँ बनाती हैं तो क्या प्रोसेस होती है रोटी बनाने की, देखो। पुट रोल्ड चपाती और डोसा बैटर ऑन फ्लैट पैन और तवा।
जनरली शी डज दैट। तवे पे रोटी रखी, उसके बाद 2-3 बार आगे पीछे उसको अच्छे से सेका, तो क्या हुआ, रोटी एक बन गई, है ना। अब उसके बाद क्या एक ही रोटी बनती है क्या घर में? नहीं, जिसको जितनी चाहिए उतनी बनती है। तो जब तक आंसर ट्रू आता रहेगा कि क्या रोटी बनानी है, ट्रू, हाँ, तो अगली रोटी, अगली रोटी, अगली रोटी, तो इस तरीके से ये हम रिपीटिशन करते हैं। और जैसे ही आंसर फॉल्स आ जाता है कि अब ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या होता है, वो स्टेटमेंट वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या हमको बताया हुआ है। सारी चीज़ें हम समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, every programming language must support these 3 types of constructs as the sequential program execution is inadequate to the problems we must solve, है ना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग को डीप में जानेंगे, बहुत से प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि सिर्फ सिक्वेंशियल अकेला अगर हमारे पास फ्लो ऑफ कंट्रोल होता, तो बहुत सी जगह पर हम लिमिटेड हो जाते, लिमिटेशन होती है हमारे पास, और हम प्रॉपरली, मतलब कि एडिक्वेटली, प्रॉपरली हम कोई क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर पाती, वो इनएडिक्वेट है अकेला सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए ये तीनों जो हैं हमारे सिलेक्शन, इटरेशन और सिक्वेंशियल, तीनों को ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करना ही चाहिए, ताकि ईज़िली हम अलग अलग प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकें, और मोस्टली करती भी हैं। ठीक है, कमिंग सेक्शन डिस्कस दीज पाइथन स्टेटमेंट्स। अब आगे के चैप्टर्स क्या करना, आगे के सेक्शंस क्या करने वाले हैं, तो इफ़ के बारे में, फॉर के बारे में और वाइल के बारे में होंगे। वो इन तीनों को हमको समझाया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, यू शुड नो बेसिक टूल्स दैट विल हेल्प यू डिसाइड अबाउट द लॉजिक टू सॉल्व द problem, that is the algorithm. For this there are multiple tools available. In the following section we are going to discuss about 3 such tools: flowchart, decision tree and pseudocode. अब क्या होता है कि आपको कोई काम करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे काम करने लगते हो, है ना। थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाते हैं ना हम कि क्या क्या करना पड़ेगा ये काम को करने के लिए, तो हाँ ये करना पड़ेगा। जब आपने मन में ये जो स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन क्रिएट किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपके मन में, जैसे कि आपको कुछ पढ़ाई करनी है, आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 4 दिन में ये टॉपिक करना है, तो आप सिर्फ टारगेट बना लेने से तो कुछ होगा नहीं। आप लोगों को सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी, कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने घंटे दिन में पढ़ाई करना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। तो सारी चीज़ों का आपको एक पहले से स्केड्यूल पूरा एक बनाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो आप क्रिएट करोगे, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगी, वो जो 4 दिन में आपको टॉपिक पढ़ना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, है ना। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप बनाते हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कंप्यूटर्स की टर्म में एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी में। तो यहाँ पर एल्गोरिदम के लिए 3 टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है फ्लो चार्ट, दूसरा है डिसीजन ट्री और तीसरा है स्यूडोकोड। देखते हैं हम ये क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल्स, चलिए देखते हैं। बिफोर डेवलपिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्राम, you should read and analyze the given problem and decide about the basic subtask needed to solve a problem and the order of these subtasks, है ना। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि हमने भी प्रोग्रामिंग की थी तो हमने सब दिमाग लगाया था ना पहले, जैसे कि फैक्टोरियल करना है तो फैक्टोरियल पहले होता क्या है, पहले तो वो पता करना पड़ेगा। फैक्टोरियल कितने तक निकालना है, 3 तक निकालना है। ठीक है, नहीं जैसे कि कुछ भी हो यार, क्यूब निकालना है या टू द पावर 5 तक निकालना है। तो अगर ऐसा कुछ आपको करने को दे दिया गया तो आप लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग नहीं चालू करोगे, आप लोग पहले सोचोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सारा आप एक आइडिया पूरा आपके पास रखोगे स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे, है ना। तो ये जो आप डिसाइड करते हो, जो सब टास्क आप डिसाइड करते हो, वो जो डिसीजन होता है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, लिखी हुई है यहाँ पर। An algorithm is a step-by-step procedure, well-defined instructions to solve a given problem। जो मैं बात कर रहा था, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप
बाय स्टेप प्रोसीजर होती है उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस द एल्गोरिदम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ गिवन टू नंबर्स इज। अब दो नंबर्स का आपको रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले क्या लोगे आप, पहला नंबर इनपुट लोगे, उसके बाद क्या करोगे, दूसरा नंबर इनपुट लोगे, उसके बाद पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद जो आखिरी में जो बचेगा, जो थर्ड नंबर आपके पास आएगा दोनों को डिवाइड करने पर, वो क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा, है ना। तो वो जो उन दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर कोई नंबर बच रहा है तो वो रिमाइंडर होगा। तो वो रिमाइंडर जो होगा उसको आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होगा। ये हैं आपकी 4 स्टेप्स। पहला नंबर इनपुट लो, दूसरा नंबर इनपुट लो, पहले और दूसरे को डिवाइड करो, जो नंबर आया उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। ये आपने मन में पहले जो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाया इस प्रॉब्लम को, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस रिमाइंडर निकालने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपने ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाया, इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को कहा जाता है एल्गोरिदम। ऑलराइट, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए एल्गोरिदम होती क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An algorithm is a set of ordered and finite steps to solve a given problem. ठीक है, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल दैट एक्सटेंड्स द अबव प्रॉब्लम। देखो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। यूजिंग द सेम लॉजिक डिटरमाइन इफ द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर और नॉट। यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम दे दिया, उन्होंने बोला कि बताओ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं, आपको ये बताना है। तो कैसे बता पाओगे, क्या करना पड़ेगा, एक नंबर यूजर्स इनपुट लोगे, फिर दूसरा नंबर इनपुट लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, और अगर डिवाइड करने के बाद जो थर्ड नंबर आ रहा है वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। अब डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है? डिविजिबिलिटी ऐसे पता चलती है कि अगर दो नंबर्स को डिवाइड किया तो अगर आखिरी में ज़ीरो बचा तो भैया हम बोलेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है, और अगर ज़ीरो के सिवा कुछ और बचा तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर डिविजिबल नहीं है। जैसे 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिलेगा आखिरी में, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर तो ये पूरी तरह से डिविजिबल, पूरा नंबर डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर बचा नहीं, ज़ीरो बचा मतलब ये उससे डिविजिबल है। मैंने 12 को 5 से किया तो दो रिमाइंडर बचा तो क्या पूरा डिविजिबल था? नहीं था। तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो ये जो आप मन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, या आप जो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहे हो, इसको बोला जाता है कि ये है एल्गोरिदम। एज यू कैन सी दैट in above algorithms are shown in bold letters and there is a proper order of carrying out these steps. Algorithms are commonly written out with the tools like pseudocode, flowcharts, decision trees and tables. Here we shall stick to flowcharts only as suggested by the syllabus. बहुत सारे तरीके होते हैं एल्गोरिदम्स को लिखने का, बनाने का। ग्राफिकल तरीका होता है ये, तो उसको बनाने का, दिखाने का, शो करने का, रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। पर हमारे सिलेबस में जो हमको कवर करना है वो है फ़्लो चार्ट। तो हमें यहाँ पर फ़्लो चार्ट के बारे में प्रोग्राम्स के थ्रू समझाया जाएगा। फ़्लो चार्ट क्या होता है आप लोग भी बखूबी जानते हो। देखते हैं यहाँ पर फ़्लो चार्ट के बारे में क्या बताया हुआ है। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मीन्स टू द एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। ठीक है, अ फ्लो चार्ट शोज डिफरेंट सब टास्क विथ डिफरेंट सिम्बल्स। अलग अलग टास्क के अलग अलग सिम्बल्स होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सिम्बल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ये सिंबल प्रोसेस का होता है, ये सिंबल डिसीजन का होता है, ये सब प्रोसेस का स्टार्ट और एंड करते टाइम ये ओवल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं तो ये, और डेटा जब दिया जाता है तो ये। तो ये कुछ 6 जो यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, ये 6 फिगर्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। ठीक है, इन 6 फिगर्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमने पहला प्रोग्राम देखा था, डिटरमाइन इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय सेकंड नंबर और नॉट, दूसरा वाला है ये। ठीक है, जो पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ये वाला एक प्रोग्राम देखा था। तो उसकी जो हमने एल्गोरिदम बनाई थी
वो एल्गोरिदम को देखो इन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसे किया देखो, स्टार्ट, और जैसे स्टार्ट हुआ तो ओवल में लिखा, तो वैसे ही आखिरी में स्टॉप हुआ तो ओवल में लिखा, ख़त्म। शुरू की 2 स्टेप्स तो आ गई। अब यूज़र से कोई डेटा लेना है तो डेटा लेने के लिए आप लोगों के पास ऐसा सिंबल यूज़ करना है। तो यहाँ पर इनपुट लिया फर्स्ट नंबर, इनपुट लिया सेकंड नंबर, तो दोनों इस शेप में लिखे, ठीक। अब उसके बाद क्या था, कुछ प्रोसेस थी, ये देखो, ठीक, कुछ प्रोसेस करनी है इन दोनों पर। क्या प्रोसेस करनी है, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एफ मॉड्यूलो एस, एफ मॉड्यूलो एस करोगे तो जो बचेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, रिमाइंडर में। यहाँ पर एफ डिवाइड बाय एस नहीं लिखा है, एफ डिवाइडेड बाय एस लिखते तो गलत हो जाता है। यहाँ पर सीधे परसेंट रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक साइन होता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलो। जैसे कि मैं लिख दूँ 12 मॉड्यूलो 5 तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ 12 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका आंसर आएगा 2.4 समथिंग, है ना। तो ऐसा आप ध्यान रखना, डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड करेगा, पर मॉड्यूलो लगाओगे तो डायरेक्टली वो रिमाइंडर निकाल कर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एफ मॉड्यूलो एस लगा दिया और इसको रिमाइंडर में स्टोर कर दिया। उसके बाद ये देखो, ये डायमंड शेप बनाया हुआ है यहाँ पर, ये अब ये डायमंड शेप क्या होता है तो ऊपर देख लेते हैं, हमको अभी याद नहीं हुआ है। जब कभी कोई डिसीजन होता है तो डायमंड शेप बनाया जाता है। चलो क्या डिसीजन है वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये डिसीजन है कि क्या इस रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इक्वल टू ज़ीरो बोलते तो क्या होता, आप अगर यहाँ पर ऐसा लिख देते रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो और रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में अंतर समझो। रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो मतलब आपने बोल दिया कि उसकी वैल्यू ज़ीरो है, आपने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया कि रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो तो है ही है, या आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो। पर जब आप 2 बार इक्वल टू लगाते हो, इसका मतलब है आप पूछ रहे हो क्या रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो है, तो वो कहाँ से पता चलेगी, तो ये एफ मॉड्यूलो एस जब आएगा तो वहाँ से पता चलेगी कि किसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला साइन लगाया हुआ है। अब अगर आंसर आया हाँ ये रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो है तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, द फर्स्ट नंबर इज़ डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो दूसरा स्टेटमेंट डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, तो क्या डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले होगा द फर्स्ट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हमको बताई गई हैं। अब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट की बात की गई है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होते हैं, और इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी हमको दिए जाएंगे, ये तो हम इनको भी देखेंगे, बट दैट विल बी इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक और दूसरा ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ हम अपन सब 11th IP वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। पर आप लोग में से अगर कोई नहीं जुड़ा है तो मुझे व्हाट्सएप करके बोलें, मैं आपको ग्रुप का इनवाइट लिंक भेज दूंगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक कर कर उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। मैं वहाँ पर भी PDFs और सारी चीज़ें अपने ग्रुप में, जो नया ग्रुप बनाया है उसमें डालते रहूँगा, ताकि वहाँ से आप लोग सारा मटेरियल ले सकें, ठीक है। तो ग्रुप में के बारे में ज़रूर से मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें, या दूसरे क्लासमेट्स से भी पूछेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 13-14 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। तो आप लोग किसी से भी पूछेंगे तो शायद आपको कोई ना कोई ग्रुप के बारे में, ग्रुप के लिंक के बारे में उसमें ऐड कर लेगा। बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।